Good afternoon students, welcome to all of you. Class 10 subject English and topic is formal letters. In the previous videos I taught you everything about formal letters. Formal letters are of four types and nowadays we are studying about complaint letters. Complaint letters are those letters in which complaint is registered. Which type of complaint? Here I would like to make things clear to you through some examples. Suppose you bought a product like a mobile phone, a refrigerator, a washing machine, a LED or anything else from the market, and it worked very well in the beginning, but it has started creating problems now. So you need to register a complaint to the sales manager. Likewise, suppose in the area where you are living, the condition of road is not good. There are pits everywhere and due to which it's very difficult to travel. So in this situation, you need to register a complaint to the municipal commissioner. Likewise, suppose in the area where you are living, there is a great nuisance of loudspeakers, due to which it becomes very difficult to concentrate yourself in your study. So in this situation, you need to register a complaint to the police commissioner. So there may be different situations in which you feel or you need to register a complaint. So I mean to say that complaint letters are those letters in which any type of complaint is registered. In the previous video, I taught you the whole format to write a complaint letter. Anyway, if you still have any kind of difficulty or confusion in your mind, so today I once again would like to revise you the whole format to write the complaint letter through another example. And the example is, you are Ravi / Ravina of 18 हीरानगर पुणे. आप या तो रवि हैं या आपका नाम रवीना है और यहाँ का एड्रेस है 18 हीरानगर पुणे. You are very much disturbed with the nuisance of loudspeakers in your locality. Nuisance means a loud voice. आपकी लोकेलिटी में लाउड स्पीकर्स की बहुत तेज आवाजें आती हैं जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रखे हैं. राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर. पुलिस कमिश्नर के लिए एक लेटर लिखिए, कंप्लेन जिसमें शिकायत की गई हो, अबाउट द सेम इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. और जो आप लेटर लिखेंगे उसकी वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स होनी चाहिए. इट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द होल फॉर्मेट of the formal letter. Okay, answer. As I told you in the previous video that first of all at the top of the letter in the left hand corner sender's address is written. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटर लिखते समय लेटर के सबसे ऊपर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में. So first of all, it's very necessary to identify the sender's address. You will be given two addresses in the question. हर एक क्वेश्चन में आपको two addresses दिए हुए होंगे. One is sender's address and another one is address of the addressee. एक तो सेंडर का एड्रेस होगा और दूसरा वाला एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. एड्रेसी का एड्रेस होगा. तो इस लेटर में देखिए, यू आर रवि / रवीना. आप या तो रवि हैं या रवीना हैं. लेटर को लिखने वाला कौन है? या तो रवि है या तो रवीना है. तो सेंडर कौन है? या तो रवि है या रवीना है. तो सेंडर्स का एड्रेस कौन सा होगा? यू आर रवि / रवीना ऑफ 18 हीरानगर पुणे. सो इट्स क्लियर दैट 18 हीरानगर पुणे इज द सेंडर्स एड्रेस. तो यही एड्रेस सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाएगा. 18 हीरानगर पुणे. इतना लिखने के बाद डेट लिखी जाती है, थोड़ा सा स्पेस देकर, और डेट लिखी जाती है जिस दिन हम लेटर लिखते हैं. आज हम लेटर लिख रहे हैं, आज 8 जून है, इसलिए आज की डेट लिखी जाएगी स्पेस देकर थोड़ा सा. 8 जून 2020. आफ्टर दैट डेजिग्नेशन लिखा जाता है. डेजिग्नेशन मीन्स लेटर लिखना किससे है. क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है. राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर. द पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखना है. तो द पुलिस कमिश्नर इस क्वेश्चन में डेजिग्नेशन हुआ. यहाँ पर स्पेस लेकर के आपको लिखना है द पुलिस
कमिश्नर। आफ्टर दैट डेजिग्नेशन से ही टच करके आपको एड्रेस ऑफ द एड्रेसी लिखना पड़ता है, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। तो एड्रेस ऑफ द एड्रेसी हियर यू नो दैट पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं तो एड्रेस पुलिस स्टेशन, भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जनरल थोड़ा सा आप कॉमन सेंस रखेंगे, पुलिस स्टेशन। कहाँ का पुलिस स्टेशन? हीरानगर का ही होगा। हीरानगर, पुणे। आफ्टर दैट इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, थोड़ा सा स्पेस देकर। सब्जेक्ट में कंप्लेंट, आप शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स। कंप्लेंट अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स। सब्जेक्ट लिखने के बाद सैल्यूटेशन लिखा जाता है, थोड़ा सा स्पेस देकर, और सैल्यूटेशन लिखा जाता है सर। नाउ सैल्यूटेशन में सर लिखा जाता है, और सर लिखने के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं। सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी, दिस पार्ट कंटेन्स द एक्चुअल मैसेज टू बी कन्वेड। एक्चुअली हम क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लेटर के माध्यम से, वही बॉडी ऑफ द लेटर होती है। बॉडी अपने हिसाब से लिखी जाती है, और थोड़ा सा बॉडी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान देना होता है। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट फॉर्मल लेटर मस्ट बी रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, और पोलाइट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जितना ब्रीफ हो सके, जितना क्लैरिटी के साथ हो सके, तो अपने हिसाब से बॉडी लिखी जाती है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट the residents of 18 Hiranagar are nowadays suffering from the problem of nuisance of loudspeakers. Sir, 18 हीरानगर के जो रेजिडेंट्स हैं वो आजकल nuisance of loudspeakers की वजह से दिक्कत फील कर रहे हैं। सर, दिस इज द टाइम ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। इस समय फाइनल एग्जामिनेशन का हमारा टाइम है सर, ड्यू टू लाउड वॉइस ऑफ लाउड स्पीकर्स। और लाउड स्पीकर्स की जो लाउड वॉइस है, जो तेज आवाजें हैं, उनकी वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कठिनाई हो रही है तो कंसंट्रेट इन देयर स्टडीज, अपने स्टडी में कंसंट्रेशन कर पाने में। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, सच हाई पिच नॉइजेज आर हार्मफुल फॉर इन्फेंट्स। इस प्रकार की जो लाउड वॉइसेज लाउड स्पीकर्स की वजह से आ रही हैं, उस वॉइस की वजह से इन्फेंट्स मतलब जो छोटे बिल्कुल बच्चे, नवजात शिशु, ओल्ड एज पीपल जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें भी दिक्कत आ रही है, एज वेल एज फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी ये हाई पिच की जो वॉइस है वो खतरनाक है। सच साउंड्स नॉट ओनली अफेक्ट द हेल्थ एंड कंसंट्रेशन, और इस प्रकार की जो हाई पिच की साउंड है उसकी वजह से केवल हेल्थ और कंसंट्रेशन में ही दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि बट दे क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन, इसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी हो रहा है। सो यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे प्रार्थना की जाती है, आपसे निवेदन किया जाता है, बाय ऑल द रेजिडेंट्स, सभी रेजिडेंट्स के द्वारा, ऑफ हीरानगर में रहने वाले जो हैं, टू टेक द मैटर सीरियसली, कि इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए, एंड डू द नीडफुल इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाएं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक, जो हीरानगर में रहने वाली जनरल पब्लिक है, ताकि उनका कुछ भला हो सके। दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर, ये जो है लेटर की बॉडी है। इसके जस्ट बाद स्पेस नहीं देंगे आप, थैंकिंग यू लिखा जाता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ही, थैंकिंग यू, एंड आफ्टर दैट कम्प्लीमेंट्री क्लोज किया जाता है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखा जाता है, थोड़ा सा स्पेस देकर। योर्स फेथफुली, देन नेम, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, हियर रवि ऑब्लिक रवीना,
Yours faithfully, Ravi. So students, this is the format of the formal letter, and these letters will be sent to you in written in PDF. So dear students, write all these letters in your fair notebook and revise these letters. Take care of you. Thank you.